So guys, welcome back to my channel. Welcome back after a long time. बहुत दिन पिছত मैं निजे ब्लॉग हिसापे कथा सो बहुत दिन पिছত मैं आपनालोকৰ আগত আহিছো एक्चुअली মাজতে মই অলপ ডিপ্ৰেছনতে আছিলো মানে আৰু টাইমো বহুত কম ইন্টাৰ্নশিপত ইমানে বেছি হেক্টিক মই আপোনালোকক যদি ক'ব খুজি এতিয়া মই एक्चुअली আকৌ ডিউটিত গৈ আছো ইভিনিং ডিউটিত সো মই দেখাম কিছুমান মুহূৰ্ত আমাৰ মানে মুহূৰ্তবোৰ দেখুৱাটো টান হৈ যায় কাৰণ মই ব্লগিং কৰিবলৈ টাইম পোৱা নাই সো এক্স্যাক্টলি টাইমবোৰ দেখুৱাবলৈ টান হৈ যায় কাৰণ মই বৰ্তমান মানে ইউনিট 4 সাৰ্জাৰী ইউনিট 4 পোস্টিং চলি আছে আৰু সাৰ্জাৰীত মানে আপোনাৰ এনেকুৱা ডক্টৰ সৰ্বেশ্বৰ ভূঞা স্যাৰ আপোনালোকে নাম হয়তো শুনিছে তো স্যাৰৰ আন্ডাৰত ইমানে বেছি পেশেন্ট গুটেই পেশেন্ট মানে বিপি চাব লাগে আকৌ ইনভেষ্টিগেশনছ পঠাব লাগে মানে যিখিনি পেশেন্ট স্যাৰৰ আন্ডাৰত এডমিট থাকে গুটেইখিনি মানে অপাৰেশনৰ আগত যিখিনি কাম সব কৰিব লাগে মানে তো ইন্টাৰ্নো কম সেইকাৰণে বহুত কষ্ট হৈ আছে মোৰ আৰু বহুত বিজি হৈ আছো সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই তথাপি মই আজি ট্ৰাই কৰিছো আজি মোৰ ৰোটেশন আছিল ইউৰোলজি যাৰ কাৰণে মই অলপ টাইম পাইছো তো ইউৰোলজি পোস্টিংৰ কিছুমান মুহূৰ্ত দেখুৱাম আপোনালোকক যেটো নিউ বিল্ডিং সুপাৰ স্পেশালিটি ব্লকত হৈছে তাতে মানে কিছুমান মুহূৰ্ত মানে অপাৰেশন থিয়েটাৰৰ আন্ডাৰত কিছুমান মই ভিডিঅ' সৰু সৰু ভিডিঅ' দিছো ইয়াৰ আগত যিকি নহওক মেডিকেল প্ৰফেশনটো ভালো আছে বেয়াও আছে মানে নিজৰ কাৰণে সময় নাই মানুহৰ কাৰণে বহুত কৰিব পাৰি কিন্তু নিজৰ কাৰণে মানে একো কৰিব নোৱাৰি সঁচা কথা ক'ব গ'লে ডক্টৰ হোৱাৰ পিছত এতিয়া মানে গম পাইছো যে নিজৰ কাৰণে কৰিবলৈ একো নাই নিজৰ খোৱা বোৱাৰো টাইম ল'ব নোৱাৰি নিজৰ কেয়াৰ কৰিবলৈ টাইম নাই কেতিয়াবা গা ধুবলৈ টাইম নাথাকে ইমান গৰমত সো মানে দৌৰা দৌৰি উপায় নাই আৰু জীৱনটো এনেকে পাৰ কৰিব লাগিব গতিকে মই এটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এটো কথা কম যে যদি আপোনালোকে মেডিকেল প্ৰফেশনটো চুজ কৰিব খোজে দেন বহুত কেটা প্ৰস এণ্ড কোনছ আছে কিছুমান বস্তু ভাল আছে কিছুমান বস্তু বেয়া আছে সেইবোৰ সত্যবোৰ জানি থকাটো বহুত দৰকাৰ নতুন প্ৰজন্মই কাৰণ বহুতে বহুত ডিপ্ৰেছনত থাকে যেনেকৈ মই নিজে ডিপ্ৰেছনত আছো কাৰণ মই ভাবিছো মোৰ কাৰণে এটো প্ৰফেশন নহয় কাৰণ মই নিজে অলপ উইক হয় মোৰ অলপ বেমাৰ আছে মানে আগৰ পৰা তো যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে অলপ উইক হয় মেন্টালি ষ্ট্ৰং হলে নহব অকল ফিজিক্যালি হেলদি হ'ব লাগিব কমপ্লিটলি হেলদি হ'ব লাগিব ডক্টৰ হ'ব খুজিলে কাৰণ যদি আপুনি ইমান দৌৰাদৌৰি কৰিব নোৱাৰে মেডিকেল প্ৰফেশনত 5 বছৰ পঢ়া-শুনা কৰাৰ পিছত আপুনি যদি দৌৰাদৌৰি কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ এটা ডিপ্ৰেছন আহি যাব যেনেকুৱা মোৰ বৰ্তমান হৈ আছিল বহুত দিন মই ভাবিছো মই কিয় এটো প্ৰফেশন চুজ কৰিলো মই ইমান কষ্টকে পঢ়া-শুনা কৰাৰ পিছত এতিয়া মই ভালকে ডিউটি কৰিব পৰা নাই বহুত ডিউটিত মানে মই ইমান 100% দিব পৰা নাই যিখিনি দিব লাগে ডিউটি কৰিবলৈ বহুত বেছি এনাৰ্জিৰ দৰকাৰ দিনটো আপুনি দিন ৰাতি দৌৰি থাকিব লাগিব যেতিয়া তেতিয়া নাইট ডিউটি আপোনাৰ তো নাইট ডিউটি কৰাটোতো আৰু বহুত টান গতিকে মই ডিটেইলছত কম এতিয়া মোৰ লেট হৈ আছে মই আকৌ ডিউটিত যাব লাগে জলদি ৰেডি হৈ ভাবিলো অলপমান ভিডিঅ' বনাও আজি কাৰণ আজি মোৰ অলপ ৰিলেক্স আছে আজি মোৰ ইউৰোলজি তো পেশেন্ট কম কেইটামান পেশেন্ট অলপ বিপি চাব লাগে আৰু কেইটামান অলপ জাস্ট ৰিপৰ্টছ ইনভেষ্টিগেশন যিখিনি আহিছে সেইখিনি চাব লাগে সো গতিকে মই বহুত কথা পাতিব আছে আপোনালোকৰ লগত বহুত দিন পিছত আহিছো অনলাইন সো বহুত কথা পাতিম এতিয়া মই যাও দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক চাই থাকিব ভিডিঅ'টো হেগলৈকে ধন্যবাদ আৰু মোৰ চেনেলটো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব মোৰ ভিডিঅ'ছবোৰ যাতে মানুহে গম পায় ৰিয়েলিটি অফ মেডিকেল প্ৰফেশন যিবোৰ মই মানে আপোনালোকে বহুত মানে এনেকুৱা হয় ন মেডিকেল প্ৰফেশন আহাৰ পিছত যে ওয়াও গ্ল্যামাৰটো বহুত অল দ্যাট গ্লিটাৰ্স আৰ নট গোল্ড হয়তো ডক্টৰছৰ নাম বহুত থাকে কিন্তু সকলো কাৰণে এটো প্ৰফেশন নহয় যি কি নহওক सो गाइस अभी मैं एसएसबी पे आ गई मेरे को सेकेंड फ्लोर पे जाना है सेकेंड फ्लोर সদায় আপুনি কাম কৰি থাকে তাতে গৈ হলো আপুনি সেই সো গাইজ वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग ए वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है आप लोगों से बात करने के लिए अभी तो मेरा सर्जरी का पोस्टिंग चल रहा था तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था लाइफ अभी कुछ दिनों से मतलब 2 दिनों से मेरा यूरोलॉजी रोटेशन था जिसके वजह से आई गॉट अ लिटिल बिट टाइम टू टॉक विद यू पीपल तो आई विल टॉक अबाउट द न्यू एक्सपीरियंसेस आफ्टर बिकमिंग ए डॉक्टर तो सबसे पहली बात हर एक प्रोफेशन में
अच्छा बुरा भला सब कुछ होता ही है। तो सेम इस प्रोफेशन में भी आपका ऐसा नहीं है कि हमेशा मतलब सुख ही सुख, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि डॉक्टर्स का प्रोफेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नोबेल है, बट नोबेल तो है लेकिन बट हमेशा खुद के लिए अच्छा नहीं है, खुद की सेहत के लिए। क्योंकि आपको ना खाने के लिए टाइम मिलेगा, ना सोने के लिए, ना नहाने के लिए, मतलब पर्सनल टाइम बहुत कम हो जाता है, जिसके वजह से मतलब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है लाइफ में, क्योंकि टाइम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वैसे तो मतलब लोगों का जब इलाज करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, लोगों का भला करते हैं, उसमें अच्छा लगता है कि हाँ चलो, उसमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो लोगों का अच्छा किया, हमने कुछ अच्छा किया तब। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस प्रोफेशन में थोड़ा ब्लेम ज़्यादा हो जाता है। और अटेंडेंट का भी मतलब, पेशेंट के अटेंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा वो होता है कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। मतलब सपोज आज का एक एग्जांपल दूँ आप लोगों को। एक पेशेंट मतलब बहुत दिन से एडमिट है, जिसका हीमोग्लोबिन है सिर्फ 4.9%। तो उनको ब्लड की ज़रूरत है ना। तो उनको हमने उनके अटेंडेंट को बोला है कि आप अपना किसी को बुलाइए, मतलब जो ब्लड डोनेट कर सकता है, ब्लड दे सकता है। वैसे तो हमारे एएनसी में एक अच्छा प्रोविज़न है कि, तो मतलब हाँ, मुझे ये देखने को मिला कि लोग तो जब किसी का बीमार हो, देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। कोई भी पेशेंट बीमार है, कोई भी इंसान घर के हो या गांव के हो, देखने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन जब ब्लड देने की बारी आती है, तब लोग ही नहीं मिलते हैं। ये बहुत सारे लोगों में है। तो आज भी एक पेशेंट जिसका हीमोग्लोबिन सिर्फ 4.5 है, जिनको ब्लड की बहुत सख्त जरूरत है, तो उनको हमने बहुत बार बोला है कि आप किसी को ढूंढिए जो आपको ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स बहुत होते हैं जिनको ब्लड की जरूरत होती है। तो उस टाइम में इनको कोई ब्लड डोनर नहीं मिल रहा है। एएनसी में तो एक सुविधा है कि आपका मतलब लोन बेसिस पे ब्लड दिया जाएगा, लेकिन बाद में वो वापस कर एक्सचेंज बेसिस में। तो वो सुविधा मतलब हमेशा वो नहीं होता है, क्योंकि हमेशा लोन पे देंगे, फिर जिसके नाम पे लोन है उसका भी वो हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस पेशेंट को हम लोग बोल रहे हैं, आज अटेंडेंट को बोल रहे हैं कि अंकल आप मतलब किसी को ढूंढिए जो आपके वाइफ को ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि इनकी ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने मतलब बातें को चेंज करके क्या बोला कि मैम आपने ये रिपोर्ट्स का पिन नहीं लगाया। हम लोग बोल रहे हैं कि आप किसी को ब्लड देने के लिए ढूंढिए, आज ही बुला दीजिए, जैसे ही आ जाएंगे डोनर हम लोग सैंपल निकल के देंगे, अब ब्लड दे देंगे। और वो बंदा मतलब वो इंसान मतलब लिटरली शॉक हो गए हम लोग कि वो कितना चालाक है। वो इस बात को मतलब चेंज कर रहा है कि मैम आपने ये पिन नहीं लगाया, अब रिपोर्ट में सारा रिपोर्ट्स एक साथ करके पिन लगा दीजिए। मतलब ही वॉज चेंजिंग द टॉपिक, ही वॉज ट्राइंग टू गिव blame to the doctors. So every time it happens, most of the time it happens that the patient, the attendant will try to give blame to the doctors को blame करने की कोशिश करेंगे दूसरे तरीके से। जबकि अब सोचिए, एक बीमार इंसान पड़ा हुआ है, उनको ब्लड देने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। जस्ट थिंक, 3 दिन से बोला जा रहा है कि आप इनको ब्लड की जरूरत है, जल्दी से किसी को बुलाइए। लेकिन उसी पेशेंट का कुछ भी हो जाएगा, सब लोग लाठी लेके आएंगे डॉक्टर को मारने के लिए। लेकिन क्या ब्लड देना, ये डॉक्टर का, ब्लड देने वाला इंसान अरेंज करना भी डॉक्टर का काम है क्या? ये तो डॉक्टर्स का काम नहीं है। आपका रिलेटिव्स किसी को भी बुलाइए, हम लोग मतलब एक्सचेंज बेसिस पे भी ब्लड देते हैं। तो ये चीज थोड़ा देखना चाहिए। लोगों के अंदर चेंजेस की बहुत जरूरत है। मेरे को मतलब अभी इस प्रोफेशन में मेरे को बहुत सारी चीज ऐसे देखने को मिल गया जिसमें मेरे को लग गया कि हम लोगों का भला तो करना चाह रहे हैं, लेकिन लोग अपना खुद का भला भी नहीं सोचते हैं। डॉक्टर्स का तो दूर ही की बात, डॉक्टर्स को तो मारना चाहते हैं, कुछ भी हो जाता है डॉक्टर्स के ऊपर ब्लेम। तो इसलिए मतलब इस प्रोफेशन में अच्छा भी है, बुरा भी है। एप्रिसिएशन बहुत कम है। आप जितना भी काम करो, दिन रात काम करो, आप मतलब खुद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन आपको एप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बहुत
बहुत कम टाइम में अप्रिसिएशन मिलेंगे, हमेशा तो ब्लेम ही मिलेंगे। अटेंडेंट का हमेशा मतलब ये वो ऐसा हमेशा मतलब लोगों का चिड़चिड़ाहट ही सुनने को मिलेगा। जो भी हो, सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल आफ्टर a long time. I got a little bit time to talk with you people because now I am having urology rotation. मेरा तो सर्जरी पोस्टिंग चल रहा है अभी, सो इट वॉज वेरी हेक्टिक। इससे पहले मेडिसिन था, फिर कैजुअलिटी था, सो आई कुडंट मेक ब्लॉग्स रेगुलरली। मैंने पीपल आर आस्किंग मी तुम्हारा नेक्स्ट ब्लॉग कब आएगा। सो इट फील्स गुड कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स के लिए इंतजार तो कर रहे हैं। कुछ लोग मतलब जो भी हो, मैं छोटा छोटा वीडियोस डालती रहती हूँ, लेकिन उसमें मतलब दैट शोज कि मेरा खुद का बात करना आप लोगों से ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, छोटा छोटा वीडियोस वो डालने से ज्यादा। तो मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं ओटी का, जो मतलब थोड़ा बहुत मैंने असिस्ट किया उसका। फिर अभी बस सीख रही हूँ मैं, सीखने का स्टेजेस है। इंटर्नशिप इज द लर्निंग पीरियड। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि मैं बहुत अच्छे से सीख पाऊँ और अच्छा डॉक्टर बन पाऊँ। जो भी हो, अच्छा डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है, अब पता चला, क्योंकि गुस्सा तो आ ही जाता है, लेकिन लोगों को गुस्सा के ऊपर कि हाँ ये डॉक्टर ने गुस्सा कर दिया। अब पता चला कि डॉक्टर्स गुस्सा क्यों करते हैं, लोग इतना बड़ा बड़ा ब्लंडर करते हैं ना, फिर गुस्सा आ ही जाता है। तो सोचो, आज अगर हमने उस इंसान को, मैंने अच्छे से समझाया कि आप किसी इंसान को बुलाइए जो ब्लड दे सकता है, इनको ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत अच्छे से समझा रही थी, वो बीच में मेरे को ब्लेम कर रहा है कि आपने ये रिपोर्ट्स का पिन नहीं लगाया। फिर मेरे को गुस्सा आया, फिर मैंने बोला भैया मैं आपको क्या समझा रही हूँ अंकल, कि आपको मैं क्या समझा रही हूँ कि आपको ब्लड देना पड़ेगा आपके वाइफ को, तो ब्लड के लिए किसी को बुलाइए। आपको इस पिन में अभी वो नहीं करना है माइंड मैं रिपोर्ट्स में पिन, सारे रिपोर्ट्स को एक साथ पिन नहीं लगाऊंगी तो इंसान का कुछ नहीं होगा। लेकिन आप अगर ब्लड अरेंज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने फिर थोड़ा गुस्सा बड़ी आवाज में बोल दिया, ऊंची आवाज में बोल दिया। सो दैट इज द थिंग, वी समटाइम्स टेंड्स टू गेट एंग्री, बट whenever doctors get angry, people will say that the doctor is angry. But the thing is that why the doctor is angry, you have to find out the reason, whether the anger is logical or not. We get angry with the people because sometimes people doesn't want to listen to us. If we don't get angry, they will not listen to our words carefully. जो भी हो, मैं तो अभी नई डॉक्टर बनी हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और आगे से बहुत कुछ सीखना भी है। तो आप लोग दुआ कीजिएगा, आगे से और वीडियोस डालूंगी। इसमें थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ कि पहले का मतलब कैजुअलिटी पोस्टिंग, फिर सर्जरी, क्या ही दिखाऊं, मतलब कुछ अच्छा क्लिप्स में बना ही नहीं पाई। जो थोड़ा बहुत बनाई थी उसमें मतलब शॉर्ट्स बना के डाल दिया, आप लोग देख लीजिएगा। और आगे से मैं ऐसे बातें करते रहूंगी। और जिसको डॉक्टर बनने का मन है उनको पहले पूरी तरह से मन से प्रिपरेशन होना पड़ेगा कि आई विल वर्क हार्ड, आई कैन वर्क हार्ड। इतना ज्यादा हार्ड वर्क है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। कभी कभी मतलब मेरा जब कैजुअलिटी पोस्टिंग था, मैं आपको बताती हूँ, मैं मतलब पहले 1 वीक नाइट ड्यूटी था, फिर नेक्स्ट वीक मेरा डे का था। तो 1 वीक जो नाइट ड्यूटी था मेरा, रात 10 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक कंटिन्यूअस 10 घंटा लगातार ड्यूटी करना है, जिसमें मैं 1 सेकेंड के लिए भी बैठ नहीं पाती थी। कभी कभी जब ज्यादा रश होता था, ये सबके साथ होता है जिसका भी कैजुअलिटी ड्यूटी रहता है, मतलब इतना ज्यादा पेशेंट आता है इमरजेंसी में, 1 सेकेंड में इतना सारा पेशेंट। और वो भी ऐसा नहीं कि सर्दी जुकाम लेके आएगा, सारे आपका मतलब माथा फटा हुआ, फिर एक्सीडेंट केसेस, जितना भी स्ट्रोक पेशेंट, कैसे एक्सप्लेन करूं आप लोगों को, मतलब बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन लेके सब लोग आते हैं, तो सबको अटेंड करना है। तो पूरा 10 घंटा कंटिन्यूअस ड्यूटी करने के बाद जब नाइट से आपका डे में चेंज होता है, फिर मेरा एक दिन सुबह 8 बजे मैं रूम पे गई, फिर मेरे को 2 बजे दिन में फिर से आना है। वैसे तो अभी इंटर्नशिप है, थोड़ा हम लोग को पोस्ट नाइट ऑफ मिल जाता है, मतलब जैसे कि नाइट ड्यूटी करने के बाद दूसरा दिन ऑफ मिल जाता है। लेकिन जो लोग पीजी है, उनका फर्स्ट ईयर पीजी, मैंने दीदी और भैया लोगों को देखा है कि उन लोगों को जैसे कि रात भर ड्यूटी करके नेक्स्ट डे फिर से सुबह सपोज 9 बजे आपका ड्यूटी करके चले गए रूम पे, फिर 9:30 बजे फिर से आना है ड्यूटी के लिए। तो इतना दौड़ भाग, जिंदगी मतलब बहुत दौड़ भाग हो जाते हैं, मतलब थकान ही थकान महसूस होता है। लेकिन
इंटरेस्टिंग है इसलिए कर पाते हैं, लेकिन खुद का बॉडी हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सबसे नहीं होता है। मेरा तो हेल्थ ऑलरेडी थोड़ा बिगड़ चुका है, तो हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक डॉक्टर के लिए। तो अगर आपका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है, तब आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते हैं, बट विल पावर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विल पावर से सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को मना नहीं कर रही हूँ कि इस प्रोफेशन में मत आओ, लेकिन ऐसा बोल रही हूँ कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर्ड। यूजी लाइफ और पढ़ाई का लाइफ और वर्किंग लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब तो जो भी हो, आगे से और जब टाइम मिलेगा, आई विल नॉट प्रॉमिस, क्योंकि मेरे को टाइम मिलता नहीं है अभी। टाइम मिलेगा तो ही वीडियो डालूंगी, ऐसा नहीं कि बोल दूंगी कि वीडियो डालूंगी। टाइम मिलेगा या नहीं, आई कांट प्रॉमिस। सो goodbye, take care, we'll see you all in the next vlog. Bye bye.